बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने नए लेसन स्टोरी उठाई थी आपकी किताब से फेस शोइंग। उसका पहला पार्ट हमने पढ़ा। उसमें जो नई नवेली दुल्हन आई थी वॉशरमैन के घर, लामदीन के घर, तो उसकी ऑथर जो बीपी सेठी उसके घर में तारीफ़ें हो रही थी, बड़ी तारीफ़ें हो रही थी। तो देखते हैं, चलो हम आगे चलते हैं। My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark. She was short, showing her annoyance. She went aside, saying, "After all, she is only a washerman's bride, not a Brahmin or Rajput bride." The aunt immediately retorted, "She's not doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste?" The sister-in-law reacted in her steps and shot back, "Bring her sister for your son then." The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek beauty. Lamdin's mother was also our auntie, but to distinguish her from our own auntie, we called her washerman auntie. Sometimes we both the aunties would be seated together. We just called auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It made us burst into laughter. For 3 or 4 days, we knew Bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day, the washerman brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a veil over her face, right down the throat. A pitcher rested on her head and a brand new pitcher on it. The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. Before going to the well, the two women came to her house, and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law, all the three ladies of her house. Blessed her, may you and may your husband live a ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. The bride has such a lovely gait, like that of a peacock dancing. Mother and aunt were well-meaning women to appreciate others and also condemned where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. Peacocks are dark, but she's so fair. Praising her like this would amount to saying that is Swan is dancing. यहाँ तक पढ़ेंगे। इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कंप्लेक्शन है, तो कंप्लेक्शन मीन्स कलर ऑफ ए फेस, चेहरे का रंग जैसी हो उसको कंप्लेक्शन कहते हैं। कलर ऑफ द फेस। एक और वर्ड है फेयर, FAIR। फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, दिलकश। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट मीन्स जल्दी जवाब देना, रिप्लाई क्विकली, क्विकली, जल्दी जवाब देना, फटाफट जवाब देना, रिटॉर्ट। एक वर्ड है यहाँ पर रिपल है। फॉर एग्जांपल रिपल होता है जैसे कोई लहर आए, ऐसा कोई इवेंट होना, जैसे कोई मतलब कोई फिर उसके बाद कोई इफेक्ट आए, असर आए, यानी कि कोई लहर आएगा किसी जगह, रिपल, उसको रिपल कहते हैं, लहर। चलो हम आगे पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो my elder brother wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark. तो ये जो ऑथर बीपी सेठी है, ये कहता है कि मेरी जो मतलब बड़ी भाई की जो दुल्हन थी वो भी ब्यूटीफुल थी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जो कंप्लेक्शन थी, कंप्लेक्शन आपके मन में वो बोला कि वो चेहरे का रंग होता है, वो थोड़ा सा डार्क था। एंड शी वॉज शॉर्ट, और वो उसका जो कद था थोड़ी बहुत छोटी थी, कद में छोटी थी। Showing her annoyance, she went inside saying, "After all, she is only washerman's bride." तो ये देखकर, ये सुनकर वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अंदर चली गई, चल कर ये कहने लगी, आफ्टर ऑल ये तो अगर हम देखें थे तो ये
ऐसी वैसी किसी बड़े इंसान की बीवी नहीं है, दुल्हन नहीं है। ये सिर्फ वाशर में एक धोबी की दुल्हन है। नॉट ए ब्राह्मण और ए राजपूत ब्राइड। ये कोई ब्राह्मण या राजपूत मतलब उन लोगों की ब्राइड नहीं है जो ऊंचे ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, हाई क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और इमीडिएटली रोड शी इज़ नॉट आवर वॉचमैन्स ब्राइड। तो जो आंटी थी उसने फ़ौरन जवाब दिया, रिटोर्ट किया कि चाहे वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो वाशरमैन की ब्राइड है, लेकिन जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी की तो कोई भी तारीफ़ें करता ही चला जाता है, चाहे वो किसी लोअर कास्ट से ही क्यों न ताल्लुक़ रखती हो। सिस्टर इन लॉ retraced her steps and shot back, bring her sister of your son, then the princess was obvious to my brother। हाँ, जो सिस्टर इन लॉ थी तो उसने कहा, उसने मतलब माँ से कहा, मेरी आंटी से कहा कि फिर ये जो लामदीन की बीवी है उसकी बहन को अपनी बहू बनकर लाओ। और उसको ये समझ नहीं आया कि ये ग्रीक ब्यूटी किससे कहा जाता है। लामदीन's mother was also an aunt, but to distinguish her from our own auntie, we called her washerman's aunt। जो लामदीन's जो उसकी जो मदर थी, वो हमारी भी मतलब चच्ची थी। तो उसको हम मतलब अपनी आंटी से कैसे डिस्टिंग्विश करते थे, फ़र्क बताते थे कि हम उसको वाशरमैन की आंटी पुकार करते, हमें ये पता चलता था कि कौन किसकी आंटी है, कौन सी आंटी है। समटाइम्स व्हेन बोथ आंटीज वुड बी सीटेड टुगेदर वी जस्ट कॉल्ड आंटी। दोनों कभी कभी जब दोनों एक ही सीट पर बैठती थी तो हम उनको आंटी कहते थे। और हम मतलब बहुत हंसी मजाक करते थे। तो इट मेड मी बर्स्ट इनटू लॉफ्टर। तो इससे हमें हंसी निकल गई, बड़ी ज़ोर की हंसी निकल गई। तो for 3 or 4 days नीव was numbered, but eventually she had to join in the household chores। तो 4-5 दिन के बाद आपको पता ही है कि दुल्हन को घर में रखा जाता है, उसको कोई काम नहीं बोला जाता है, उसके वो मेहमान नवाजी के दिन होते हैं। तो जब आखिरकार ये जो रामदीन की बीवी थी, ब्राइड थी, उसको घर के चोर्स में, घर के जो काम काज में उसको तो अब ज्वाइन करना ही पड़ा। वन डे एक दिन क्या हुआ, वाशरमैन ने और वाशर वुमन जो थी, वाशरमैन उसके साथ और वो एंड डॉटर इन लॉ अलॉन्ग विथ हर फेच वाटर। और उसने जो ये थी डॉटर इन लॉ, उसकी जो बहू थी वो साथ लाई, पानी लाने के लिए साथ लाई। द डॉटर इन लॉ हैड व्हील ओवर जो डॉटर इन लॉ थी, जो ये बहू थी, उसके चेहरे पे पर्दा था, व्हील था, नकाब था। तो और उसके सर पे एक बर्तन था, उस बर्तन पे दूसरा बर्तन था जिसमें पानी लाया जाता था। पिक्चर होता है मिट्टी का बना हुआ बर्तन। द वेल वॉज नियर आवर हाउस, पीपल फ्रॉम फॉर नियर जो कुआं था जिसमें वो पानी ले जाते थे, जिससे वो पानी ले जाते थे, तो हमारे हाउस के नज़दीक ही था। वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, अपने बर्तन लेके पानी भरते थे। तो जब ये दोनों लोग, ये वाशरमैन और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, ये भी आए, तो उन्होंने मेरी माँ के पैर छुए। और मेरी जो आंटी और माई सिस्टर इन लॉ जो थी, ऑल द 3 लेडीज ऑफ 4 हाउस ब्लेस्ड हर। तो उन्होंने उसको दुआएं दी कि आपकी उम्र दराज हो। बट आफ्टर दे लेफ्ट, जब वो चले गए तो इससे एक लहर हमारे घर में पैदा हुई, रंजिश की लहर पैदा हुई। द ब्राइड हैज सच अ लवली गेट लाइक द फुट ऑफ अ पीकॉक डांसिंग। तो ये लोग अब ये जो औरतें थी तारीफ़ें करने लगे कि ये जो ब्राइड है, इसका जो लवली गेट है, वॉकिंग स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है, लाइक ए पीकॉक डांसिंग, जैसे कि कोई मोर लगता है, डांस करता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।